नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। सेकंड चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम स्टडी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बेसिस पे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है p ऑफ x इक्वल्स टू ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, वेयर n इज नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, देन x इज डिजायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस, n number of Bernoulli trials, small p is probability of success, small q is probability of failure and x is desired number of successes। हमने ये फॉर्मूला के बेसिस पे काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी p प्लस q इज इक्वल टू 1। सेकंड इज वेन एवर देर इज सेम बेस, कॉमन बेस and there is a multiplication sign between these two terms, that like p raised to x and p raised to y. So addition of index means p of x into p of y will result in p of x plus y. P of x upon p of y, so p raised to x minus y. So these results to be kept in mind. और probability density function p of x ncx p raised to x q raised to n minus x, ये फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन है जिसको हम स्टडी करेंगे अभी। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 6, रमेश करके कोई प्लेयर है और उसको टारगेट हिट करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 दी गई है। दैट रमेश फेल्स इन हिटिंग द टारगेट इज गिवन, ही फेल्स इन हिटिंग द टारगेट इज 2/5, so he hits the target is 3/5 because total is always 1, p plus q is equal to 1. तो fail in hitting the target is 2/5 and hits the target is 3/5. Most important point is determination of the term success and failure. हमें क्वेश्चन के हिसाब से सक्सेस फेलियर को डिसाइड करना है। हमें पूछा गया यहाँ पे कि आउट ऑफ 3 ट्रायल्स he fails in 2 trial, he gets succeed in 2 trials, यानी टारगेट को हिट करे वो सक्सेस है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि टारगेट मिस कर जाए वो सक्सेस है, तो हमें p के लिए वैल्यू लेनी होगी 2/5 और q के लिए वैल्यू आएगी 3/5। बट हियर इन दिस केस इट इज आस्क्ड दैट आउट ऑफ 3 ट्रायल्स he hits in 2 ट्रायल्स एग्जैक्टली। तो 2 ट्रायल को हिट करे 3 में से, यानी हिट करना वो सक्सेस है, इसलिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5, हिट्स द टारगेट, एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। नाउ p of x is ncx p raised to x q raised to n minus x में p of 2 is to be obtained, so ncx यानी 3c2 3/5 success probability raised to 2 and 2/5 raised to 1 because it is 3 minus 2, 2/5 raised to n minus x is 3 minus 2, that is 1. Now 3c2 is 3 into 2/2, 3/5 raised to 2 यानी 3 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर करना है, यानी 3 into 3 and in denominator 5 into 5 and 2/5 raised to 1 यानी 2/5। सो यहाँ पे ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, सो 3 into 3 into 3 into 2, so it is 54 and 5 into 5 into 5 is 125, so he hits in 2 trials out of 3 trials, the probability is 54/125. 54/125 is the probability that he hits in exactly 2 trials out of 3 trials. Second thing is asked in the question is mean. Mean for this binomial probability distribution is np, variance is npq and standard deviation is root npq। तो यहाँ पे हमें मीन पूछा है, तो मीन की फॉर्मूला है n into p, n is number of Bernoulli trials, that is 3, and probability of success is 3/5, so 3 into 3/5, 9/5 will be the answer. In next question there are 7 numbers, 7 digits, 1 2 3 4 5 6 7, first 7 natural numbers, a number is to be selected, तो odd number and even number, यहाँ पे बात odd और even number की है, तो up to 1 to 7 there are 4 odd numbers 1 3 5 7 and 3 even numbers 2 4 6. So if odd number is selected, its probability is 4/7, and if even number is selected, its probability is 3/7. Here odd number is eligible for prize. Question is about allocating prize and odd number is eligible for prize, यानी odd number अगर आता है तो उसको प्राइस दिया जाएगा। तो odd number के चांसेस है 4/7 और even number के चांसेस है 3/7, क्योंकि नेचुरल नंबर से 1 to 7 जिसमें 4 odd numbers है।
So probability of success, here 5 trials, n is equal to 5 trials and price in only one trial, only one attempt, एक ही अटेम्प्ट में प्राइस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, यानी प्राइस मिले ये सक्सेस है। तो प्राइस कब मिलेगी, जब ऑड नंबर होगा तब सक्सेस है, तब प्राइस मिलेगी, यानी ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी p इक्वल्स टू 4/7 एंड q इक्वल्स टू 3/7। अगेन 7 natural numbers 1 2 3 4 5 6 7, if odd number is selected its probability is 4/7, even number is selected probability is 3/7, because 3 even numbers 2 4 and 6, here odd number is eligible for prize and we are asked to compute that out of 5 trials he receives prize in only one trial, just one trial. So desired number of success is x is equal to 1, number of Bernoulli trials equals to 5 and probability of success is 4/7 for odd number and even number is probability of failure, that is q, and it is 3/7. Now p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. इसमें हम p for 1 obtain करेंगे। p of 1 के लिए 5c1, 5 trials, so 5c1 4/7, 4/7 p की वैल्यू है 4/7 raised to 1 and 3/7 raised to 5 minus 1 यानी कि 4. Now 5c1 is 5 and 4/7 raised to 1 यानी एक बार 4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा एंड देन 3/7 raised to 4, तो 3 raised to 4 है इसलिए 3 into 3 into 3 into 3 4 times 7, डिनोमिनेटर में चेक करें तो 7 raised to 1 है और 7 raised to 4 है। हमें पता है कि अगर इंडेक्स में बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन की साइन हो तो इंडेक्स में एडिशन होगा, यानी यहाँ पे 7 raised to 1 है और ये 7 raised to 4 है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7 raised to 5, यानी 7 7 7 7 7 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन से 1620 न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 1620 अपॉन 16807. सो इफ out of first 7 natural numbers, if prize is to be allocated for odd number and in 5 trials, exactly one trial, if he receives the prize, its probability is 1620 upon 16807. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मीन की वैल्यू हमें दी गई है NP जिसकी वैल्यू है 2 और वेरिएंस है NPQ, वैल्यू है 6/5। हमें P of 1 और P of 2 ढूंढना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस आउट ऑफ ट्रायल्स। सो ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें पता नहीं है। नाउ फ्रॉम वेरिएंस एंड मीन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें P of 1 और P of 2 ढूंढना है, जिसके लिए ये जो दो रिजल्ट्स है मीन और वेरिएंस के, उसमें से हमें N, P और Q को स्प्लिट करना होगा, वो 3 वैल्यू निकालनी होगी, जिसके लिए ये रिजल्ट को हम यूज करेंगे NPQ इज इक्वल टू 6/5 जिसमें NP की वैल्यू है 2, NPQ इज इक्वल टू 6/5 जिसमें NP की वैल्यू है 2, तो इन प्लेस ऑफ NP 2 कैन बी रिटन, सो 2Q इज इक्वल टू 6/5, सो Q इज इक्वल टू 6/10 मीन्स 3/5। सो Q की वैल्यू हमें मिल गई 3/5। अगर Q की वैल्यू 3/5 है तो सक्सेस फेलियर का टोटल 1 है, P प्लस Q इक्वल्स टू 1। इफ Q इज 3/5 तो P की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलेगी 2/5। सो Q is 3/5 and P is 2/5. Now next required term is N, Bernoulli trials. For that we will use this result NP is equal to 2. So NP equals to 2 में P की वैल्यू अगर 2/5 रिप्लेस करे तो N into 2/5 equals to 2, तो 2 दोनों साइड से कट हो जाएगा, इसलिए N की वैल्यू आएगी 5. Now we have all desired terms. Number of trials is 5, probability of success is 2/5 and probability of failure is 3/5. तो NPQ को ऑब्टेन करना वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें फर्स्ट 0 ट्रायल, सक्सेस इन 1 ट्रायल एंड सक्सेस इन 2 ट्रायल, यानी P of 1 एंड P of 0 को ऑब्टेन करना है। नाउ फॉर P of 1, फर्स्ट ऑफ ऑल P of x फॉर्मूला इज NCX P raised to x Q raised to n minus x. So P of 1 5C1 because there are 5 trials, so 5C1 and 2/5 raised to 1 and 3/5 raised to 5 minus 1 means 4. Now 5C1 is 5, 2 raised to 1 है इसलिए 2 आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 3 raised to 4 है तो 4 times 3 का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में 5 है, 5 raised to 1 and 5 raised to 4, so total 5 times 5 into 5 into 5 into 5 into 5, ये 5 एलिमिनेट होगा, तो मल्टीप्लीकेशन करें तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा 162 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 625. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट one success out of these 5 trials is 162 upon 625. Next is P of 2.
तो P ऑफ 2 के लिए 5C2 NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x, सो 5C2 2/5 रेस टू 2 एंड 3/5 रेस टू 5 माइनस 2 यानी 3. नाउ 5C2 यानी 5 इंटू 4/2, 2 रेस टू 2 यानी 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, 3 रेस टू 3 यानी 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में 5 रेस टू 2 यानी 2 बार 5 और 5 रेस टू 3 यानी 3 टाइम्स, यानी इन टोटल 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा. अब यहाँ पे ये 5 कैंसिल होगा एंड 2 कैंसिल करने पे 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 is 216 and 5 into 5 into 5 into 5 is 625. So 216 upon 625 is the answer for getting exactly 2 successes out of 5 trials. Now next is, in a box there are 10% rotten apples and 90% normal means good apples. So यहाँ पे हमें 10% एंड 90% परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी दी गई है, ये समझना है. बट अभी भी डिजायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस क्या है, रोटन एप्पल्स के गुड एप्पल्स, उसके बारे में हमें क्वेश्चन को स्टडी करना है. हमें पूछा गया है कि आउट ऑफ 6 ट्रायल्स हाफ रोटन एप्पल्स, 6 ट्रायल्स है यानी n इज इक्वल टू 6 एंड एग्जैक्टली हाफ रोटन एप्पल्स. हाफ मीन्स 6 का हाफ होगा 3, तो x 3 आएगा. डिजायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस इज 3, number of Bernoulli trials is 6 and rotten apples is our success. Rotten apples is our success. Success determination is utmost important in this chapter. So rotten apples की probability है 1/10 because 10% apples are rotten in a box. तो rotten apples हमारे लिए success है. इसके लिए P is equal to 1/10. 10% is 10/100, so 1/10. And 90% apples are in good condition, so it's our failure. So Q is equal to 90/100 यानी 9/10. So rotten apple success है यहाँ पे, इसलिए P 1/10, Q 9/10. Number of trial 6 and exactly half rotten apples के लिए पूछा गया है. तो out of 6 trials, half means 3 trials. So P of 3 obtain करना है, जिसके लिए P of x is equal to NCx P raised to x Q raised to n minus x में वैल्यू पुट करेंगे. P of 3 के लिए 6C3 1/10 raised to 3 and 9/10 raised to 6 minus 3 that is 3. तो 6C3 के लिए आएगा 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into now 9 raised to 3 है यानी 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा and 10 raised to 3 and 10 raised to 3 यानी 6 टाइम्स 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा. तो 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10 6 टाइम्स. अब यहाँ पे ये 3 2 6 कैंसिल होगा, 5 2 10 होगा और इस तरह से यहाँ पे 2 into 9 into 9 into 9 बचेगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1458 एंड डिनोमिनेटर में ये 5 टाइम्स 10 है यानी 100000. सो 1458 अपॉन 100000, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.01458. अब हम यहाँ पे 4 डिजिट तक आंसर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का. तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4th जो डिजिट है वो 5 है, इसलिए 5th डिजिट को देखेंगे जो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए इफेक्ट यहाँ प्रीवियस डिजिट पे पास ऑन होगी. तो 0.0146 इज द फाइनल आंसर फॉर गेटिंग हाफ सक्सेसेस इन केस ऑफ रोटन एप्पल्स आउट ऑफ 6 ट्रायल्स. इसके बाद हमें वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस होता है n इंटू P इंटू Q. तो ट्रायल्स टोटल है 6, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/10 एंड फेलियर की 9/10. So n 6 into 1/10 into 9/10, answer is 54/100, that is 0.54. Next section E में से same type of questions है. अब यहाँ पे there are 5%, n is equal to 5% and जो study हो रहा है उनकी age है 50 years. 50 years में total 5%. अब हमें पूछा गया है, हमें 2 possibility दी गई है कि person die within a year is 0.01%. 1% chance है that person die within a year. जिनकी एज 50 years है, ऐसे 5 लोगों को स्टडी किया जा रहा है and there is a chance that a person die within a year is 0.01 and a person will survive, will not die means will survive, the probability will be 0.99. अगर डेथ की चांसेस 0.01 है तो सर्वाइवल के चांसेस होंगे 0.99. तो हमें क्वेश्चन में अभी भी सक्सेस फेलियर के लिए डिटरमाइन करना है. हमें पूछा गया है कि इफ नन ऑफ देम डाई इन अ ईयर, none of them die in a year. So यहाँ पे सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें the person die within a year, ये हमारे लिए सक्सेस है and a person will survive is our failure. तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.01
एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.99, P equals to 0.01, Q equals to 0.99. Now none of them will die, यानी जीरो सक्सेस हुआ, बिकॉज डेथ इज सक्सेस एंड सर्वाइवल इज फेलियर इन दिस केस. अब यहाँ पे नन ऑफ देम विल डाई, यानी जो 5 लोगों को स्टडी किया जा रहा है उसमें से एक की भी डेथ नहीं होगी, यानी जीरो सक्सेस हुई यहाँ पे, जीरो सक्सेस. तो P of x इज NCx P raised to x Q raised to n minus x, जिसमें n की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज 0.01 एंड फेलियर इज 0.99. सो 5C0, 0.01 raised to 0 एंड 0.99 raised to 5. 5C0 1 एंड कोई भी इंडेक्स हो रेस टू 0 तो भी उसकी वैल्यू 1 एंड 0.99 रेस टू 5 इज 0.95099, 95099. तो यहाँ पे फिफ्थ जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो मोर देन 5 है, तो इफेक्ट आगे पास ऑन होगी. तो यहाँ पे 9509 की जगह हो जाएगा 9510. सो P of 0 is 0.9510, यानी none of them will die in a year, none of them will die in a year, probability is 0.9510. Now at least one of them will die, at least one of them, at least बोला गया यानी मिनिमम, यानी हमें P of 0 और P of at least 1 दिया गया, यानी मिनिमम, यानी 1, 2, 3 या 4 या 5 की डेथ हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि टोटल 5% का स्टडी किया जा रहा है. तो बोला गया है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डाई, एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है, 1 की डेथ, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, यानी हमें P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 प्लस P of 4 प्लस P of 5 को ऑब्टेन करना है. अब P1 से P5 का ये एडिशन हमें चाहिए, तो टोटल जो रेंज है पॉसिबिलिटी की वो है P of 0 से लेके P of 5. अब हमारे पास P of 0 की ऑलरेडी वैल्यू है, सिग्मा px यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो 1 में से अगर हम 1 में से P of 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे 1 में से, क्योंकि सिग्मा px 1 है, तो P of 0 प्लस P of 1, 2, 3, 4, 5 सबका टोटल 1 है, जिसमें से हमें ये ऑब्टेन करना है P1 से लेके P5 तक की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1% डाई आउट ऑफ 5. सो P1 से P5 के लिए हम 1 में से P of 0 को माइनस कर सकते हैं, 1 में से, ये एक शॉर्टकट है. अदरवाइज हमें P1, P2, P3, P4, P5 की इंडिपेंडेंटली वैल्यू ऑब्टेन करके सबका एडिशन करना पड़ता, क्योंकि हमें इन सब की जरूरत है. कंडीशन एटलीस्ट 1 की नहीं है, ओनली 1. कंडीशन एटलीस्ट 1 की है, ओनली 1 की नहीं है. ओनली 1 की होती तो हमें P of 1 ऑब्टेन करना होता कि ओनली 1% डाई, बट हियर एटलीस्ट 1, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 का एडिशन चाहिए, और 0 से 5 की रेंज है, जिसमें से एडिशन के लिए 1 में से, क्योंकि सिग्मा px 1 है तो 1 में से P of 0 माइनस कर सकते हैं, तो 1 माइनस P of 0 इज 0.9510, तो 0.049 इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में. तो एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज के चांसेस है 0.3 एंड नो एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज इज 0.7. तो यहाँ पे सक्सेस है 0.3 एंड फेलियर है 0.7, क्योंकि हमें पूछा गया है कि 5 स्टूडेंट में से नंबर ऑफ ट्रायल्स है 5 और 5 स्टूडेंट में से मोर देन 3 स्टूडेंट गेटिंग एडमिशन आर मोर इन नंबर. सो गेटिंग एडमिशन इज सक्सेस. हमें पूछा गया है, क्वेश्चन के टोन से समझना है कि स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिशन आर मोर इन नंबर, ऐसा हमें पूछा गया है. तो गेटिंग एडमिशन इज सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड नॉट गेटिंग एडमिशन इज आवर फेलियर. सो फेलियर प्रोबेबिलिटी इज 0.7, P equals to 0.3 and Q equals to 0.7. Now students getting admission are more in number compared to those students who are not getting admission. तो जिनको एडमिशन मिल रहा है उनका नंबर नहीं मिलने वालों से ज्यादा होना चाहिए. तो अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट का स्टडी है तो 3 को एडमिशन मिलेगा तो 2 को नहीं मिलेगा, यानी 3 स्टूडेंट्स इफ एलिजिबल फॉर एडमिशन, तो उनका नंबर एडमिशन नहीं मिलने वालों से ज्यादा होगा. 3 को एडमिशन मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा, 4 को मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा, 5 को मिलेगा, 0 को नहीं मिलेगा. तो P of 3 plus P of 4 plus P of 5 is required to be computed in this case. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना है, स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिशन आर मोर इन नंबर compared to those students who are not getting admission. So we need P of 3 plus P of 4 plus P of 5. So independently हमें तीनों वैल्यू पहले ऑब्टेन करनी है. फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, P of x is NCx P raised to x Q raised to n minus x.
जिसमें P ऑफ 3 के लिए 5C3 0.3 एंड 0.7 5C3 होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 0.3 है यानी 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगा 0.3 का 0.7 यानी 0.7 इंटू 0.7 होगा। यहाँ 3 और 2 का यहाँ एलिमिनेशन होगा 2 2 जा 4 सो 5 इंटू 2 इंटू this multiplication of 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 and its ultimate answer is 0.1323. So getting 3 success out of 5 means 3 students gets admission in engineering college out of 5 is 0.1323. Now for P of 4 is 5C4 0.3 0.7 5C4 होगा 5 into 4 into 3 into 2 4 पोजीशन तक जाएंगे अपॉन 4 into 3 into 2 so 432 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.3 है तो 4 टाइम्स 0.3 का मल्टीप्लीकेशन एंड 0.7 है यानी 1 टाइम 0.7 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन आंसर इज 0.02835। नाउ फिफ्थ डिजिट इज 5 सो इफेक्ट इज टू बी गिवन टू द फोर्थ डिजिट तो वो 3 की जगह 4 हो जाएगा 0.0284 ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस आउट ऑफ 5 ट्रायल्स यानी 5 में से 4 स्टूडेंट को एडमिशन मिले उसकी ये प्रोबेबिलिटी। नाउ पांचों स्टूडेंट को एडमिशन मिले तो P of 5 is 5C5 0.3 0.7 5C5 होगा 1 इंडेक्स में 0 होगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन उसका भी वैल्यू आएगा 1। नाउ 0.3 है यानी 5 टाइम्स 0.3 का मल्टीप्लीकेशन होगा जिसकी वैल्यू है 0.00243 मींस 0.0024। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट probability that students getting admission are more in number compared to students who are not getting admission. So P of x greater than equals to 3. So P of 3 plus P of 4 plus P of 5 3 students get admission 4 students and 5 students इन सबकी probability का total करने पे 0.1631 is the probability for that question students getting admission are more in number compared to students who are not getting admission. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक केस स्टडी दिया गया है 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड एंड 2 बॉम्ब्स इनफ टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। अब इस तरह का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी आता है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है उसमें बॉम्ब ड्रॉप्स फ्रॉम 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स ए एंड बी दोनों की इंडिपेंडेंटली प्रोबेबिलिटी दी गई है बॉम्ब हिट करने की एंड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज 1 बॉम्ब इज सफिशिएंट इट इज गिवन। दोनों हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी भी है यानी लॉ ऑफ एडिशन को यूज करके प्रीवियस चैप्टर में हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था। P of A दैट एयरक्राफ्ट A हिट्स द टारगेट P of B एयरक्राफ्ट B हिट्स द टारगेट माइनस P of A इंटरसेक्शन B दैट बोथ द एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट उसका आंसर था 0.97 बट इट वाज अ डिफरेंट केस डिफरेंट स्टोरी। वहां पे 2 एयरक्राफ्ट में से एक ब्रिज पे बॉम्ब ड्रॉप करने की बात थी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट थी दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दी गई थी और मल्टीप्लीकेशन के साथ दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी बोथ हिट्स द टारगेट दिया था और एनीवन वो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओनली 1 बॉम्ब इज सफिशिएंट ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था। अब ये क्वेश्चन एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे सिक्वेंशियली 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड ऑन अ ब्रिज ये समझना इस बात को 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड इन ऑन अ ब्रिज जिसमें से 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय दैट ब्रिज। तो probability that bomb hits the target is given as 1/5 and bomb does not hit the target is given as 4/5. Bomb hits the target 20% chances है that bomb hits the target means 1/5 and 4/5 that bomb does not hits the target। हमें पूछा गया है कि probability find the probability that the bridge get destroyed। तो ब्रिज कब डिस्ट्रॉय होगा 2 बॉम्ब टकराए 3 टकराए 4 5 और 6 ये हमारे लिए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी है यानी P of 2, P of 3, P of 4, P of 5 क्योंकि P of 6 यानी इन सबका हमें एडिशन करना पड़ेगा तब जाके हम ब्रिज टूटने की प्रोबेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं क्योंकि 2 बॉम्ब से भी 3 से भी 4 से भी 5 से भी 6 से भी टूटेगा ब्रिज मिनिमम 2 बॉम्ब्स आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमें थोड़ा उल्टा यहाँ पे सोचना होगा कि हमें P of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 चाहिए जैसे कि यहाँ पे P of 2 प्लस P of 3, P of 4, P of 5, P of 6 इन सबका टोटल चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे रिजल्ट में यूज किया था कि सिग्मा px1 है और डिजायर्ड जो प्रोबेबिलिटी थी वो P1 से P5 तक की थी यानी P of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की थी जिसके लिए हमने 1 में से P of 0 की प्रोबेबिलिटी को माइनस किया था यही शॉर्टकट था। वैसे यहाँ पे भी शॉर्टकट अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि हमें P2, P3, P4, P5, P6 की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकाल के सबका एडिशन करना पड़ेगा ये एक रास्ता है।
दूसरा ये है कि अगर सिग्मा px1 है यानी p0 से p6 एक भी बॉम्ब ना टकराए, एक टकराए, 2, 3, 4, 5, 6, इन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 में से अगर हम p0 और p1 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे, अगर p0 और p1 की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दे तो ऑटोमेटिकली p2 से लेके p6 की प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमें मिल जाएगा। तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए 1 माइनस p ऑफ 0 और प्लस p ऑफ 1 को हमें माइनस करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर की है। वर्किंग नोट के लिए p ऑफ x डेंसिटी फंक्शन इज ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, तो p ऑफ 0 के लिए 6c0 1/5 रेज टू 0 एंड 4/5 रेज टू 6, तो 6c0 होगा 1 और कोई भी इंडेक्स 0 होगा तब भी 1 आएगा। 4 रेज टू 6 है यानी 6 टाइम 4 का मल्टीप्लीकेशन एंड 5 रेज टू 6 है इसलिए 6 टाइम्स 5 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो आंसर है 4096 अपॉन 15625 मीन्स 0.2621, 0.2621 यानी एक भी बॉम्ब ना टकराए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2621। अब एक बॉम्ब टकराने की प्रोबेबिलिटी है 6c1, p of 1 is 6c1 1/5 raised to 1 and 4/5 raised to 5, so 6c1 होगा 6, यहाँ पे 5 raised to 1 and 5 raised to 5, तो डिनोमिनेटर में 5 raised to 6 यानी 6 टाइम 5 का मल्टीप्लीकेशन एंड 4 raised to 5 यानी 5 टाइम्स 4 का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे 6144 by 15625 यानी 0.3932, 0.3932 that one bomb hits the target। तो 0 में ब्रिज नहीं टूटेगा, 1 में नहीं टूटेगा। हमें पूछा गया ब्रिज टूटने की प्रोबेबिलिटी के बारे में, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो 1 में से ये p ऑफ 0 और p ऑफ 1 जो माइनस करेंगे दोनों का एडिशन 0.2621 प्लस 0.3932 यानी 0.6533 माइनस करें अगर 1 में से, देन वी हैव दैट प्रोबेबिलिटी 0.3447 दैट द ब्रिज गेट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेड एंड व्हाइट बॉल्स के बारे में केस स्टडी है। 3 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स, 4 balls are to be selected यानी n is equal to 4, 4 balls are to be selected, so n is equal to 4। probability of success is red ball selected, red ball select हो वो हमारे लिए सक्सेस है यानी 3/7 क्योंकि there are 7 balls, so 3/7 is probability of success, 4/7 is probability of failure that white ball is selected। now px is ncx p raised to x q raised to n minus x। हमें पूछा गया है कि if 2 red balls are to be selected means exactly 2 red balls are to be selected, so p of 2 is 4c2 3/4 raised to 2 and 4/7 3/7 raised to 2 and 4/7 raised to 2, so 4c2 होगा 4 into 3/2 3 raised to 2 यानी 3 into 3 4 raised to 2 यानी 4 into 4 and 7 raised to 2 into 7 raised to 2 यानी 4 टाइम्स 7 का मल्टीप्लीकेशन आएगा डिनोमिनेटर में। और इसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 864 अपॉन 2401, सो 0.35985। फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 है इसलिए फोर्थ डिजिट चेंज होगा, सो 0.3599 इज द आंसर दैट एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 बॉल्स। दूसरा हमें पूछा गया है कि इफ ऑल 4 व्हाइट बॉल्स आर सिलेक्टेड, अगर चारों 4 व्हाइट बॉल है इसका मतलब रेड बॉल 0 है, रेड बॉल 0 है। हमने यहाँ पे रेड के कॉन्टेक्स्ट में पूरे इवेंट को, पूरे एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया है क्योंकि रेड ही सक्सेस है अपने लिए और व्हाइट फेलियर है। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑल्टरेशन करें तो व्हाइट सक्सेस हो जाएगा, रेड फेलियर, पर हमें यहीं पे इसी केस को आगे कंटिन्यू करना है, हमें चेंज नहीं करना है। हमें बोला गया कि 4 व्हाइट बॉल्स मींस 0 रेड बॉल यानी 0 रेड बॉल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है यानी p ऑफ 0 निकालना है यहाँ पे, तो p ऑफ 0 होगा 4c0 3/7 रेज टू 0 एंड 4/7 रेज टू 4, तो 4c0 होगा 1, 3/7 रेज टू 0 है इसलिए वो भी होगा 1, 4 रेज टू 4 यानी 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लीकेशन एंड 7 रेज टू 4 यानी 4 टाइम्स 7 का मल्टीप्लीकेशन, 2/256 अपॉन 2401, सो 0.10662 अल्टीमेट आंसर इज 0.1066। तो ये क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा ध्यान देना है। हमें पूछा गया है व्हाइट बॉल के लिए, पर हमने क्वेश्चन जो यहां तक हमने सॉल्व किया है वो रेड बॉल के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करना है। 4 व्हाइट बॉल्स मींस 0 रेड बॉल, तो रेड बॉल के हिसाब से हम आंसर निकालेंगे, वो अल्टीमेटली 4 व्हाइट बॉल्स का ही आंसर होगा। 0 रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेक्शन एफ में क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें P is habit of eating chocolate and Q is habit of not eating chocolate। चॉकलेट
के लिए स्टडी करना है 50% of 50% persons are having habit of eating chocolate and rest 50% are not having habit of eating chocolate. So probability of success and failure both is same in this case, 1/2 1/2. Now 1024 investigators are appointed for investigation of this habit of eating chocolates. Probability that less than 30% have habit of eating chocolates, ऐसा हमें पूछा गया है. Probability that less than 30%, अब 10 लोगों का स्टडी करना है. इन्वेस्टिगेटर्स 1024 है, बट 10 स्टूडेंट्स का स्टडी करना है. ओनली 10 स्टूडेंट्स गेट इवेल्युएटेड, इंस्पेक्टेड फॉर दिस पर्पस, एंड प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 30% हैव हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट, यानी 30% यानी 3 हुआ. 100% होगा 10 स्टूडेंट्स, तो 30% होगा 3 स्टूडेंट्स, और हमें बोला गया है लेस देन 30% यानी 3 से कम स्टूडेंट को. 3 से कम स्टूडेंट यानी 0, 1 एंड 2. प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2. तो P of x लेस देन 3 पूछा गया है, तो P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2, जिसके लिए कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है वर्किंग नोट में. P of x इज इक्वल टू NCx P raised to x Q raised to n minus x, जिसमें P of 0 इज 10C0 1/2 raised to 0 and 1/2 raised to 10. तो 1 into 1 into 1/2 raised to 10 होगा 1024. Now P of 1 है 10C1, तो 1/2 raised to 1 and 1/2 raised to 9, तो 2 है डिनोमिनेटर में, रेस टू 10 आएगा क्योंकि 1 + 9 10 है, इसलिए 10 इंटू 1/1024, एंड आंसर इज 10/1024. तो एक भी स्टूडेंट को हैबिट ना हो चॉकलेट की, वो है 1/1024. एक स्टूडेंट को हैबिट हो, वो 10/1024. 2 स्टूडेंट को हैबिट हो, आउट ऑफ 10 2 स्टूडेंट को हैबिट हो, तो 10C2 1/2 raised to 2 and 1/2 raised to 8, because 10 minus 2 is 8. So 10C2 होगा 10 into 9/2, so होगा 45, and 1/2 raised to 10 होगा 1024, 45/1024. So 0 student has habit of eating chocolate, 1 student eating chocolate, 2 student has habit of eating chocolate. ये सबकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है. हमें पूछा गया था कि लेस देन 30% स्टूडेंट्स हैव हैबिट ऑफ ईटिंग चॉकलेट, लेस देन 30% for 10 students, so 30% is 3 student, and less than 30% means P of 0 plus P of 1 plus P of 2. तो इसका एडिशन करने पे 1/1024 plus 10/1024 plus 45/1024, 56/1024 is the answer, that at least 30% less than 30% student have habit of eating chocolate. एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हमें कि कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स का ये रिव्यू आएगा, जिसके लिए ये फॉर्मूला याद रखनी है. कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर इनटू दैट प्रोबेबिलिटी, डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी. तो n into P of x less than 3, n is 1024 investigators into 56/1024. So 56 investigators out of 1024, 56 investigator will give their opinion about this habit of eating chocolate. तो ये जो क्वेश्चन थे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में थे. यहां से आगे रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट तैयार करेंगे. उसके मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन है, और उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू को ऑब्टेन करने के क्वेश्चंस. दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.